In the previous class, we discussed about the electric motor and especially we discussed DC motor. Now it's time to discuss AC motor. देखिएगा AC जनरेटर और AC मोटर की बात करें तो जनरेटर में तो हमने क्या किया था, वी आर अप्लाइंग द मैकेनिकल फॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी वी आर जनरेटेड देयर. ओके, एंड इन दिस फॉर्मेशन मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर की फॉर्मेशन की बात करें तो वी आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी and then mechanical formation we will obtain. So in case of AC generator we have to apply AC source, means AC alternating current we have to apply it, and you know very well in alternating current the direction of electric current is reversed after every half cycle. Okay, so construction is same as before, जैसा कि हमने वहां पर भी यूज किया था. कैसे, यहाँ पर आर्मेचर कॉइल, इस आर्मेचर कॉइल की बात की जाए तो आर्मेचर कॉइल के लिए हमने कहा था कि इट इज मेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर विच इज वाउंडेड ओवर soft iron core. Okay, and which is placed between the poles of a strong magnet, and there are two slip rings, S1 and S2. They are cylindrical slip rings, and B1 and B2 are carbon brushes. Okay, and this is the AC source which will provide us alternating current. So construction is very clear. Again the formation is in AC motor, again electrical energy will be converted into mechanical energy. Fine, and the direction of motion we will find with the Fleming's left hand rule. तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जब आप जनरेटर की बात करेंगे तो इंड्यूस करंट फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वी हैव टू बी यूज्ड. ओके, सो राइट डाउन दैट एसी मोटर. और एसी मोटर, हम तो मोटर की डेफिनेशन की फॉर्म में बात कर रहे हैं, डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. फाइन, एंड इन कंस्ट्रक्शन first of all draw this diagram and then write the first point, armature coil. So the same formation for the armature coil, number of insulated copper wire, number of turns of insulated copper wire wounded over soft iron core which form armature coil, and it is placed between poles of strong magnet. It is placed between poles of strong magnet. That is the same for the अभी तक हम जितने भी केसेस डिस्कस किए सब में हमने आर्मेचर कॉइल का डेफिनेशन ऐसे ही फॉर्म में आर्मेचर कॉइल के लिए यही लिखा है. देन नेक्स्ट इज सेकंड इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. अगेन द सेम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ are used to provide strong magnetic field, and armature coil is placed between the poles of strong magnet. That is the same as before. Then S1 and S2, they are slip ring. So third is slip rings, two cylindrical metallic rings S1 and S2 are used, which are connected with armature coil, which are connected with the ends of armature coil, So that's the construction for the slip rings, third point. And then fourth one is brushes. में भी वही हम यूज करते हैं, वैसा का वैसा स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करेंगे. Write down that B1 and B2 are two carbon brushes which are fixed and keep in contact with slip rings.
and transfer electric current from AC source to armature coil through slip rings, because they are in contact with the slip rings, so they can pass out the electricity from AC source to armature coil. And the last one is AC source. What is the purpose of this? It is used to provide what? Alternating current. Write down that. A source which is used to provide alternating current is connected as shown in diagram. So that is the basic construction for the AC motor. Fine. The theme is वर्किंग इज इम्पॉर्टेंट. कैसे वर्क करेगा, क्योंकि आप चाहते हैं वहां तो डीसी में हमने देखा था कि डीसी के लिए करंट का डायरेक्शन सेम था, क्योंकि मोटर तो जिस तरह का मोशन करना है वो या तो क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है या राइट एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है वो तो वैसा ही रहना है. बट यहाँ आप देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है. करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने के बाद भी इलेक्ट्रिक मोटर का जो मोशन है वो वैसा का वैसा बना रहे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है. सो लेट्स चेक दैट. कैसे इसका हम बात करेंगे. सपोज करें कि पहले हमने करंट जो आया हाफ साइकिल के लिए, दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम PQRS लाइक दैट. मीन्स इन PQ आर्म डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज P2Q एंड इन RS इट इज R2S. तो करंट की डायरेक्शन इसमें कैसी है? P2Q और R2S. जरा देखें अब इनका मोशन कैसे होगा. उसको देखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर in the direction of electric current, then thumb will represent the direction of motion or force. So force is inverse. So you can check that PQ arm will be moved in the downward direction if current is flowing from P to Q. So PQ arm will move in the downward direction, and in case of RS magnetic field, current is R2S, then the force is outward direction. So RS arm will in the upward direction. So upward and this is in the downward direction. So you can say that this will move in this way. PQ इनवर्ड जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड गया, ये कैसा गया अपवर्ड. तो ये ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हुआ. अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कौन सा मोशन हुआ आपकी डायरेक्शन में देखोगे तो यहां से अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका मोशन ऐसा हुआ. दिस इज क्लॉकवाइज. कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज. आपकी तरफ से देखना, मेरी तरफ से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, लेकिन आपके साइड से आप देखेंगे तो इट इज क्लॉकवाइज. यानी ये कैसे रोटेट हुआ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ. लेकिन हमें पता है कि आफ्टर हाफ साइकिल मीन्स नाउ PQ and RS will interchange, means now PQ will be in this way and RS in this way, and the current from AC source, because it will reversed, because AC current after half cycle direction will be reversed. जैसे पहले करंट कैसे जा रहा था? PQRS जा रहा था, तो अब करंट कैसे जाएगा? SRQP. और PQ और RS आर्म की पोजीशन पहले ही हमने इंटरचेंज कर दी है. हमने क्या करी है? रोटेशन के बाद चेंज हो गई है. और करंट की डायरेक्शन भी देखो ऐसा हो गया है. अब कैसा सिचुएशन होगा जरा देखें. मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज. नाउ इन द PQ आर्म की पहले बात करें. PQ आर्म पहले कैसा गया था? PQ आर्म डाउनवर्ड. अब यहां बात करो मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन, फोर्स किधर गया? अपवर्ड. यानी PQ आर्म किधर जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. RS की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, फोर्स किधर गया? डाउनवर्ड. तो RS आर्म कैसे जाएगा? ऐसे. यानी कि PQ ऐसे और RS ऐसे. तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है. ऐसे रोटेट हो रहा है मतलब करंट का डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो गया है. उसके बाद भी आप देख पा रहे हैं कि जो कॉइल का मूवमेंट है वो कैसा है? क्लॉकवाइज. यानी जो मोटर का जो आर्मेचर कॉइल रोटेट होगा वो क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा, चाहे करंट का डायरेक्शन
हर हाफ साइकिल में कैसा होगा, रिवर्स होता होगा, रिवर्स हो ही रहा है, फिर भी उसके मोशन में कोई फर्क नहीं होगा। फाइन। सो हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिक मोटर यानी फैन का मोटर अगर रोटेट हो रहा है, ब्लेड्स उसकी रोटेट हो रही हैं, तो जो आर्मेचर कॉइल के साथ ब्लेड्स अटैच्ड हैं वो ऐसा थोड़ी होता है हर हाफ साइकिल में ऐसा रिवर्स होती है, दे मूव इन द सेम वे। तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्किंग भी हमने देखा, तो वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्पेसिफिकेशन करना हमारे लिए ज़्यादा भूलना नहीं है इसको, है ना, उसको स्पेसिफाई ज़रूर कर देना है। सो राइट डाउन द वर्किंग। When electric current flows in the armature coil, when electric current flows in the armature coil, P2Q in PQ arm, P2Q in PQ arm and R2S in RS arm। हम बाकी की नहीं बात करते, बस स्पेसिफिक उनकी बात करते हैं ना। ऐसा नहीं कि क्यू आर में करंट ना हो, उसमें भी करंट है, वो करंट का डायरेक्शन हम बस सिर्फ इतना बता देते हैं। P2Q in PQ arm and R2S in RS arm, and according to Fleming's left hand rule, and according to Fleming's left hand rule, Fleming's left hand rule, फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स की वजह से PQ कहाँ गया, डाउनवर्ड, और RS कैसा गया, अपवर्ड। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, PQ आर्म मूव्स डाउनवर्ड, PQ आर्म्स मूव्स डाउनवर्ड एंड RS आर्म मूव्स अपवर्ड, PQ आर्म्स मूव्स डाउनवर्ड एंड RS आर्म मूव्स अपवर्ड्स, एंड आर्मेचर कॉइल रोटेट इन clockwise direction. Armature coil rotates in clockwise direction. Fine. Rotates in clockwise direction. Change the paragraph now. After half cycle, position of PQ and RS arm are interchanged, एक दूसरे की जगह आ गई, interchanged. Simultaneously the direction of electric current also reversed. Simultaneously direction of electric current also reversed. Now electric current flows Q to P. Electric current flows Q to P in PQ arm and S to R in RS arm. S to R in RS arm. Again, we have to use the Fleming's left hand rule, and according to Fleming's left hand rule, PQ arms moves upwards, and RS arm moves downward, and armature coil moves in clockwise direction. Armature coil rotates in clockwise direction. तो उसकी डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम हमें रहा ही नहीं. So paragraph change. Hence electrical energy is converted. Into mechanical energy. हमारे घर में जितनी भी जो जैसे फैन हो गया या कोई भी ऐसा मशीन आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें मोटर यूज़ हुआ है, वो सब कैसे हैं? बिकॉज हमें कौन सा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट हमें सप्लाई हो रहा है, तो ये सारे कैसे मोटर हैं? ऐसी मोटर हैं. लेकिन जो रेलवेज के अंदर जो फ़ैन हैं
उनमें हम डीसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ जो डीसी मोटर्स यूज़ होती हैं, तो वहाँ के जो फ़ैन हैं वो कौन सी मोटर है, वहाँ पर डीसी मोटर वाले हैं। अगर इनकी कंपैरिजन की बात की जाए मोटर्स की, तो एसी मोटर्स ज़्यादा ड्यूरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द डीसी वन। ओके, ड्यूरेबल भी है प्लस चीप एंड बेस्ट हम ये कह सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि हमारे लिए जो कम कॉस्ट में हमें जो प्रोवाइड हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। तो एसी की अगर हम बात करें तो एसी का फीचर ही यही है हमारे लिए कि इंडिया में हम एसी क्यों यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ चीप एंड बेस्ट। और हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसमिट इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए it's very important, we have to be transmit the electricity at high voltage. So high voltage we can get with the alternating current, ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम इसको स्टेप अप कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट वी कैन नॉट चेंज इट्स वोल्टेज, और हाई वोल्टेज बहुत उसका कॉस्टली होगा, तो हम डीसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। और उसके लिए हाई वोल्टेज भी हमने कहा कि कॉस्टली होगा। और ट्रांसफार्मर जो कि ईएमआई के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ईएमआई का मतलब आप समझते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हम क्या करते हैं, आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आता है, वेरिएशंस आने चाहिए। जब एसी में तो वेरिएशंस हैं, तो एसी के वेरिएशन से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा सकते हैं। लेकिन डीसी में कोई वेरिएशंस नहीं है। अगर कांस्टेंट वैल्यू का जब मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट वैल्यू का होगा। और हमें फैराडे ने कहा ही है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस। और डीसी के केस में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस नहीं होगा, तो कोई इंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ट्रांसफार्मर जो कि ईएमआई के कॉन्सेप्ट पर है वो डीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर दैट।